एक एक सिंगल सिंगल सचिन सरकार जो है वो कुछ एरिया के साथ भेदभाव कर रही है। महाविकास आघाड़ी ने तो अपना सवाल पूछने का मौका ही खो दिया। अगर उनके भी मुख्यमंत्री, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो थोड़े बहुत अभी भी राज्य उनके पास रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री जाते तो वो भी अपनी बात, अपने प्रदेश की जनता की बात, अपने प्रदेश की प्राथमिकताएं और उपलब्धियां पूरे देश के सभी नेताओं के सामने, केंद्र और बाकी राज्यों की सरकार के प्रमुखों के सामने रख सकते थे। तो मैं समझता हूं महाविकास आघाड़ी ने अपने अंतर्गृह में देखना पड़ेगा कि उन्होंने इतना अच्छा मौका खोया। आखिर नीति आयोग सभी का है, देश का है, और मैंने इसके ऊपर 2 दिन पहले ही वक्तव्य दिया था दिल्ली में कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो नीति आयोग पूरे देश की चिंता करते, आखिर बजट भी पूरे देश के लिए है, ऐसे ही नीति आयोग भी पूरे देश के लिए। तो अगर वो जाते तो उनको लाभ ही होता। उन्होंने नहीं जाने से अपने प्रदेशवासियों के साथ अन्याय किया। Auto industry is something which is very close to you, and the company heads and people were expecting a lot of things from the budget. Continuation of policies for electric mobility was the focus area. However, that has not really happened. Where is the discontinuity? Everything in our policy stance remains the same. In fact, FAME scheme is an ongoing scheme. Every budget you don't mention every scheme. That is what I am amazed why people don't recognize budgets are in continuity. And this one particularly is a continuation of the interim budget that was announced 4 months ago. So this has to be seen in context with the interim budget. Both together become the budget document. And to my knowledge, this budget has given a big leg up to the electric mobility. Critical minerals mission has been announced. Critical mineral policy will be coming out soon. Deep sea mining will be encouraged as announced in the budget, and the import duty on critical minerals has also been reduced. So this budget has focused deeply on auto industry. Today, electric two-wheelers are an economically viable proposition. They do not require any more support. I'm in regular dialogue with them. The two-wheeler industry has confirmed to me that electric two-wheelers can compete today on its own merits based on capital and OPEX, CAPEX and OPEX both, and they do not need any government subsidy. I think in the next few years, 100% two-wheelers will become electric on their own strength, on the merit and the savings that our consumers will get. Every person I've talked to, literally every person, and all the comments that I've seen have recognized that this is a fiscally prudent budget. This budget has not fallen prey to trying to get into populism. This is a budget which has a long-term perspective. It has ensured the strength of the Indian economy is respected. It further strengthens the fundamentals of the Indian economy, the macroeconomic fundamentals, strengthens the base, because unless we have a strong base, we will not be able to build the edifice of Viksit Bharat in the coming 23 years. I think by presenting this budget, Prime Minister Modi and Nirmala Sitharaman ji have demonstrated to the world that India continues to be on the path, the Amrit Kal, on the path of Viksit Bharat 2047. We'll continue to be fiscally prudent, which is necessary for a strong rupee and for low inflation, which is necessary to attract people to invest in India so that Make in India gets strengthened, jobs for our young men and women increase, and business gets a leg up. As business grows, opportunities grow. Our young men and women who come out of college will also get more opportunities. With the removal of angel tax,
The startups are extremely excited. The stock market had factored in a much deeper increase in taxes, what the gentleman was saying. In fact, in most parts of the world, developed countries also, long-term capital gain tax is 20%, 25%. Even in very developed nations, we have one of the lowest long-term capital gain tax regime. So I think the world, they were expecting a much steeper increase. So they are extremely happy, and all circles have widely welcomed this budget. लास्ट उमाकांत शेवटचा प्रश्न. आप एनर्जी मिनिस्टर रह चुके हैं, बजट में मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में अनाउंसमेंट हुई है. तो जैतापुर अपना बहुत साल से ये हुआ है, तो अभी जैतापुर या कहीं भी महाराष्ट्र में वो प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसे आपको लगता है क्या? उसके लिए आप प्रयास करेंगे? मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स और जैतापुर दो अलग अलग विषय हैं. मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स 50 मेगावाट से शुरू होते हैं और उनका जो टोटल पूरा साइज है वो इतना छोटा है और अलग अलग साइज के मॉड्यूलर प्लांट्स ऐड अप करके वो प्लांट बनते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पे सेफ्टी ऐड करते हैं. आपकी जानकारी के लिए मैं हाल में ही ज़ुरिक गया. एफ्टा जो हमने नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे के साथ साइन किया शायद 10 या 12 मार्च को. उसके लिए निवेश लाना है वहां से, उसकी बातचीत करना है. तो मुझे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन की जो सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स पे काम करती है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स में. मैं समझता हूं इसका लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी का भी लाभ होगा और क्लीन एनर्जी का भी लाभ. अरेवा का प्रॉब्लम हुआ करके वो नहीं हो पा रहा है, तो मतलब जैतापुर की लैंड अपने पास है, तो वहाँ पे नहीं तो महाराष्ट्र में वो प्लांट होने चाहिए, इसके लिए आप प्रयास करेंगे? ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलके जो विभाग है वो लोग चर्चा करके तय करेंगे. मुझे इसकी स्पेसिफिक जानकारी नहीं. सवाल है, शरद पवार जी ने एक टिप्पणी की है अमित शाह जी के ऊपर. उन्होंने कहा कि जिनको गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से तलपा किया जो देश के गृहमंत्री. शरद पवार जी यूपीए सरकार के एक अहम अंग थे. एनसीपी उनका भाग था, वो भी कैबिनेट में थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पूरी तरीके से यूपीए, कांग्रेस, एनसीपी का पर्दाफाश कर दिया है कि वो जो केस अमित शाह जी के ऊपर लगाया गया था पूरी तरीके से बेबुनियाद झूठा केस था. उन्होंने कोशिश की थी अमित शाह जी और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी पर प्रहार करके एक झूठे केस में उनको, क्योंकि उनको स्पष्ट दिखता था उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उनको स्पष्ट दिख रहा था कि अगले चुनाव में वो हारने जा रहे हैं, तो उस हार को बचने से वो कोशिश कर रहे थे मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर प्रहार करके एक झूठा केस अमित शाह जी के ऊपर लगाया गया और कोर्ट ने अंत में उनको पूरी तरीके से बरी किया, पूरी तरीके से पर्दाफाश किया और झूठे केस में शरद पवार जी उस साजिश के हिस्सा थे. और मैं शरद पवार जी से माफी मांगता हूं उनके षड्यंत्र के लिए. उनकी सरकार यूपीए कांग्रेस के साथ जो मिलकर उन्होंने षड्यंत्र किया था अमित शाह जी पे, अच्छा है उन्होंने वो उजागर करके याद दिलाया कैसे यूपीए में वो भी हिस्सा थे और उन्होंने अमित शाह जी के ऊपर ये षड्यंत्र किया. कोर्ट के निर्णय को पढ़ लीजिए आप. कोर्ट ने बताया कि षड्यंत्र बेबुनियाद था, पूरी तरीके से षड्यंत्र था अमित शाह जी के ऊपर. शरद पवार जी उस पार्टी के, उस सरकार के हिस्सा थे. 2+2 आप खुद कर सकते. पवार साहब ने अवश्य देश से माफी मांगनी चाहिए इस झूठे इल्जाम के लिए. अब वो पार्क्स की इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हम एक एक पार्क फाइनल करते हैं समय समय पे निकलेगी. पर एक पार्क जिसकी जानकारी हम सभी को है, प्रेस में सभी को मालूम है कि एक पार्क प्रपोज हुआ है महाराष्ट्र से और मुझे पूरा विश्वास है उन 12 पार्क्स में महाराष्ट्र का पार्क भी शामिल होगा.